Hi and welcome to our mains answer writing initiative day 8. Today we are going to discuss about urban planning. Recently हमने देखा था बेंगलोर में एक फ्लड आया था बहुत ज़्यादा, जिससे बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए थे आईटी सिटी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया को. सो व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू इट, रिलेटेड टू अर्बन प्लानिंग. हमारा क्वेश्चन आज उसी पे फोकस रहेगा. हमारा क्वेश्चन है आज का, द स्टेट ऑफ करंट अर्बन प्लानिंग इन इंडिया डजेंट मेक्स इट सेफ अगेंस्ट डैमेजेस एंड लॉसेस. इसको हमको एनालाइज करना है. सो what is the conclusion of the question is we have to discuss or we have to count on the issues, we have to see the loopholes in the current urban planning of India. इसको हम एनालाइज करेंगे एंड what could be the way forward, उसको हम सजेस्ट करेंगे वहाँ पे. So our answer will remain the same, that is the intro body conclusion. Intro में we will introduce or we will start with the issues. What are the urban flood status in India? What are the losses which is being currently bore by the urban India due to the floods and the damages occurring due to it. In the body part we will discuss what are the current issues with the planning, that is the second part. Then we will discuss what are the efforts which have been taken in this regard, that is the third part. And then lastly our conclusion, which will comprise of the course of the action which we should take. So let's start our answer. Let's start with the introduction in which we will discuss the picture of urban floods in India. Currently status क्या है urban floods का इंडिया में. So हमारे यहाँ urban floods बहुत ज़्यादा frequently आते हैं. For example you can see if we talk just about the metropolitan cities, दिल्ली में 2013 and 21 में एक urban floods आए थे बहुत large scale पे. I am not counting the small scale floods which occur every year, nearly every other year in these cities. मुंबई में एक large scale flood आया था 2005 and 2017 में, चेन्नई में 2015 and last year 2021 में, हैदराबाद में 2020 में, and recently just last month in बेंगलुरु in 2022 जहाँ पे extensive losses हुए थे property and life के due to floods. डैमेजेस की अगर बात करें तो मुंबई में जस्ट बिटवीन द 10 ईयर्स पीरियड 2015 टू 2005 टू 2015 के बीच में 14,000 करोड़ के लॉसेस हुए थे. चेन्नई के लिए फिगर जाता है 2015 में अलोन जो फ्लड आया था बहुत लार्ज स्केल का, दैट वाज 15,000 करोड़. जो रिसेंटली लास्ट ईयर आया था उसका कभी भी एग्जैक्ट एस्टिमेट वी डू नॉट हैव इट. सो इसके ये जो लॉसेस आते हैं इकोनॉमिक लॉसेस वो तो हैं ही हैं, साथ साथ सोशल एंड ह्यूमन कॉस्ट जो होती हैं. कई लोगों के पुअर जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं पर्टिकुलरली उनके घर डूब जाते हैं, उनके घर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनकी लाइवलीहुड चली जाती है, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स, उनके पूरी इकोनॉमिक सेविंग्स वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो द सोशल एंड ह्यूमन कॉस्ट विच इज़ एसोसिएटेड विद दिस आर इवन लार्जर देन द इकोनॉमिक लॉसेज विच अकर ड्यू टू दिस फ्लड्स. So why does this floods impact so much? Look, we cannot control the amount of rainfall which occur in any year, but what we can do is to reduce the losses to minimum which occur due to these floods. So why are we unable to stop these large scale economic and social losses occurring due to these floods? So there are some issues with the planning. What are those issues with the planning वो हम देख लेते हैं. First and the foremost, 65% of urban settlements in our country, 65% of cities and metropolitan towns in our country, metropolitan cities in our countries do not have a master plan on how to manage floods in their cities whenever there is excess rainfall. Second issue is नीति आयोग रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो सिटीज़ के लिए मास्टर प्लान बना सकें, बट उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है आइदर इन फॉर्म ऑफ मैन पावर और इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंसेस टू मेक दोज फाइनेंस मास्टर प्लान. और अगर इतनी कैपेसिटी है भी कि मास्टर प्लान बना सकें तो उनको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने के लिए ना तो फाइनेंसेस है ना तो एक्सपर्ट मैन पावर है टू मैनेज दोज मास्टर प्लान. दिस इज़ द फर्स्ट मेजर इशूज़, मास्टर प्लान का लैक एंड द लैक ऑफ कैपेसिटी टू इम्प्लीमेंट दोज मास्टर प्लान. द सेकेंड इज़ सिटी गवर्नमेंट्स की अथॉरिटीज़. हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट को वैसे भी अथॉरिटीज़ बहुत लिमिटेड दी जाती है. उस लिमिटेड अथॉरिटी में भी जो अथॉरिटी है उनको जो मास्टर प्लान बनाने की अपनी सिटीज़ के लिए फ्लड्स को मैनेज करने के लिए इट डू नॉट हैव स्टैट्यूटरी बैकिंग. स्टैट्यूटरी बैकिंग मतलब कोई लीगल बैकिंग या लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं है, जिस कारण से सिटी गवर्नमेंट्स उस प्लान को किस फॉर्म में एग्जीक्यूट कर सकती हैं, कितनी अथॉरिटी से एग्जीक्यूट कर सकती हैं,
कोई एक सेंट्रल नोडल पावर, कोई एक स्टेट पे सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, कोई एक स्टेट लेवल पे अथॉरिटी जो इस प्लान को इम्प्लीमेंट, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अथॉरिटी जो इस प्लान को एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट कर सके, ऐसी कोई भी ऑथोराइज्ड बॉडी नहीं है. सो इवन इफ देयर इज़ मास्टर प्लान, देयर इज़ नो वन टू authorized to implement it. In that case you have a paper plan but you cannot implement it. बेंगलुरु में एक मास्टर प्लान नहीं है. जब से इसका डेवलपमेंट एक नए स्केल पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है 2015 से, तब से उसने अपना मास्टर प्लान अपडेट नहीं किया है, फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन देयर न्यू इमर्जिंग नीड्स. थर्ड पॉइंट इज़ लोकल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट के पास मास्टर प्लान बनाने की अथॉरिटी है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट्स उस अथॉरिटी के बाहर है. मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स कैन प्रिपेयर मास्टर प्लान, बट लोकल गवर्नमेंट के पास क्या अथॉरिटी है ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है. मतलब द स्टेट गवर्नमेंट्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट टॉप टू बॉटम अप्रोच लेती है यहाँ पे. लोकल गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी अथॉरिटी. लेजिस्लेटिवली 7 शेड्यूल के अंदर में जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है मास्टर प्लान बनाने की, उसमें लोकल गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एज एनी स्टेक होल्डर इन सजेस्टिंग any kind of input in preparing master plan for their cities. So this takes away the element of decentralization. There is no decentralized planning for in terms of preparing a master plan for the cities. Most of the cities जो हैं जिनके पास plans हैं भी, वो plans outdated and old plans हैं which are not based on present mapping. So प्रेजेंट जो मैप हमारे पास है सिटीज़ के और जो प्लान्स हैं उन दोनों के बीच में कोई बेसिकली कोहेरेंस नहीं है, जिसके कारण ओल्ड प्लान्स डू नॉट वर्क बेस्ड ऑन द न्यू नीड्स ऑफ द सिटीज़. अगर हम एग्जांपल की बात करें तो दिल्ली का जो करंट ड्रेनेज मास्टर प्लान है, दिल्ली का जो एग्जिस्टिंग मास्टर प्लान है, वो 1976 में ड्राफ्ट हुआ था, नियरली 50 ईयर्स अगो. एंड राइट नाउ it is just in the last year when they have started to implement the new plan which have been prepared based on the needs of the changing times in Delhi. Similarly Delhi में जो ड्रेनेज लाइंस हैं, बेंगलुरु में जो ड्रेनेज लाइंस हैं 2015 मास्टर प्लान्स के अकॉर्डिंगली, वो बहुत सिग्निफिकेंटली डिफर करती हैं एज़ पर द ड्रेन्स मैप्ड बाय द म्यूनिसिपैलिटी. म्यूनिसिपैलिटी ने जो ड्रेनेज नेटवर्क का मैप बनाया है जो करेंटली उस मैप से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है वो करेंटली जो 2015 में मास्टर प्लान बनाया गया था उनके फ्लड्स का मैनेजमेंट का. द थर्ड मेजर इशू इज़ देयर इज़ लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन प्रिपेयरिंग एनी काइंड ऑफ मास्टर प्लान फॉर द सिटी. वट एवर प्लान इज़ मेड विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स. द एक्सपर्ट्स आर नॉट इन टच विद द पब्लिक एंड देयर नीड्स, एंड दे आर नॉट completely aware of the demands of the public or the needs of the public. So they make plan purely mechanically and not adjusted with the needs of the public. This takes away the credibility of the plan and increases the chances of failure of those plans. So lack of public participation is another issue. The one more issue, if we talk about Mumbai plan, अगर ये सारे एलिमेंट जो हमने देखे जो दिल्ली और बेंगलुरु के मास्टर प्लान में मिसिंग थे, अगर हम मुंबई प्लान की बात करें तो मुंबई प्लान में वो सारी चीज़ें एड्रेस्ड हैं. मतलब उनके प्लान में वो सारी चीज़ें मिसिंग नहीं है. देयर प्लान इज़ वेरी परफेक्ट, नियर टू परफेक्ट, बट देयर प्लान लैक्स एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग. उनको कोई लीगल बैकिंग नहीं है, कोई रेगुलेटरी कंट्रोल नहीं है. इन केस कोई फ्लड आता है तो स्टेट गवर्नमेंट इज़ द वन विच डायरेक्ट व्हाट टू डू. BMC को डायरेक्ट करता है कि व्हाट यू शुड डू. And as you can understand, BMC understand Mumbai better than state government because they work purely for Mumbai. So वहाँ पे legal backing ना होने के कारण BMC is not authorized to take action as per their understanding, which is the best in terms of working. So ये मुंबई प्लान के साथ इशू है. मुंबई प्लान इतना परफेक्ट है कि इट इवन टेक्स इनटू अकाउंट नेट ज़ीरो एमिशन, कि कैसे हम कार्बन एमिशन है उनको नेट ज़ीरो की डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, विच कैन हेल्प इंडिया अचीव इट्स क्लाइमेट एक्शन टारगेट एज़ पर द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट. सो इस कारण से मुंबई प्लान जो है इट इज़ नॉट सक्सीडिंग एज़ पर द एक्सपेक्टेशन डिस्पाइट बीइंग परफेक्टेड. दीज वेर द इश्यूज़ विद करेंट प्लानिंग इन इंडिया. अगर हम एफर्ट्स की बात करें कि हमने क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं अभी तक, व्हाट आर द एफर्ट्स बीइंग टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल बॉडीज़. सो जनरल मेजर्स लिए हैं, जैसे कि रिवर या ड्रेन्स जो हैं उनमें जो भी ब्लॉक्स हो जाते हैं उनको चोक हो जाते हैं उनको क्लीन अप करते हैं. एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाते हैं जो कि रिवर में बॉडीज़ में इंक्रोचमेंट कर रही हैं जिसके कारण वहाँ पे फ्लड्स आ रहे हैं या फिर ऐसी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं
इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं, जो रिवर के पाथवेज़ या लेक्स के पाथवेज़ को ब्लॉक करते हैं, जिसके कारण फ्लड की कंडीशन बन जाती है, तो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे हैं। स्टॉर्म वाटर का नेटवर्क प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बहुत बड़े लेवल के डायमीटर के ड्रेनेजेस बना रहे हैं, जो इन पानी को, जो भी पानी एक्यूमुलेट होता है सिटीज़ के पेवमेंट पाथवेज़ पे, उनको ड्रेन करेंगी फुल स्पीड में, जिससे फ्लड की कंडीशन ना बने। सो ये जनरल मेजर्स लिए जा रहे हैं। कर्नाटका ने फॉर एग्जांपल एक 2021 में 900 करोड़ रुपीस का एक प्रोजेक्ट प्रपोज किया था, जो अनाउंस किया था, जो बेंगलोर में जो फ्लडिंग होती है उसको रिलीव कर सकें। रिसेंट फ्लड के बाद म्यूनिसिपैलिटी ने ऑर्डर किया है कि एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, मतलब इलीगल कंस्ट्रक्शन और इलीगल जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको रिमूव किए जाएंगे और ज़्यादा उनकी ड्राइव को स्पीड अप किया जाएगा, सो दैट फ्लड की कंडीशन ना बने। दिल्ली में दे आर इम्प्लीमेंटिंग न्यू प्लान, एज आई टोल्ड यू, विच इज़ मॉडिफाइड फॉर्म, जो करेंट नीड को एड्रेस करता है। इन एडिशन मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर जैसी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो अपने म्यूनिसिपल प्लान, मास्टर प्लान में क्लाइमेट एक्शन प्लान को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, सो दैट क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी फ्लड्स की कंडीशन बनती हैं उनको भी एड्रेस करें, उनके कारण जो फ्लड्स के एग्रेवेटेड लेवल हमको फील हो रहे हैं उनको भी वो रिड्यूस कर सकें। सो दीज आर द एफर्ट्स बीइंग टेकन, but as you can see all these efforts are reactionary in nature. Reactionary means they just address immediate needs, they just address what are the immediate causes of the floods, they do not address the long term reasons of the floods which are occurring, which are increasing in frequency every other year. So what is the course, what should be the course of action, or what should be the way forward, what should be the long term strategy to deal with this urban flooding issue? फर्स्ट, हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाना चाहिए सारी मेजर इंडियन सिटीज़ को, नॉट जस्ट फॉर मेट्रोपॉलिटन, सो दैट, क्योंकि बेसिकली अर्बन एरियाज़ आर द एरियाज़ विच कंट्रीब्यूट मोस्ट फॉर द क्लाइमेट चेंज इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। सो हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाना चाहिए जो ना सिर्फ एनवायरनमेंटल एस्पेक्ट बल्कि इंडस्ट्रियल, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करे, जिसके कारण फ्लडिंग की जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो। सेकेंड, जितने भी प्लान्स हम बनाते हैं उनको हमको स्टैट्यूटरी बैकिंग देनी है, सो दैट एक क्लियर कट अथॉरिटेटिव स्ट्रक्चर हो, क्लियर कट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन का मैकेनिज़्म हो जो फ्लडिंग की कंडीशन को फास्ट ट्रैक करे। थर्ड, हम जितने भी प्लान बनाएं वो पब्लिक कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग हो, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो लोकल प्लान्स जो होंगे वो और ज़्यादा परफेक्ट होंगे, दूसरा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का फॉलो अप होगा। वी आर नॉट चाइना, वी आर नॉट एन अथॉरिटेरियन स्टेट, वी आर अ डेमोक्रेटिक स्टेट, सो ऑल आवर प्लान्स शुड बी बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स दैट वुड बी मोर एंड मोर परफेक्ट। एंड लास्टली, हर सिटी में एक एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होना चाहिए जो डेडिकेटेडली एनवायरनमेंट रिलेटेड जो इश्यूज़ या डिज़ास्टर्स हैं उनके लिए डेडिकेटेडली वर्क करे। जैसा कि हमने दिल्ली के लिए एक एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बनाई है, जो वहाँ पे जब भी एनवायरनमेंटल रिलेटेड इंडिकेटर्स में फ्लक्चुएशन होता है तो उनके लिए इमीडिएट एक्शन लेता है इन ऑर्डर टू एड्रेस देम। सो दीज आर द 4 मेजर बेसिक रिकमेंडेशन। हम इसको एक शॉर्ट में कंक्लूड कर लेते हैं। वी शुड हैव अ मास्टर प्लान फॉर एवरी सिटी। दोज मास्टर प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड बाय लोकल गवर्नमेंट इन कोलेबोरेशन विद पब्लिक और along with public participation. These master plans should have a statutory backing, legal backing होना चाहिए इसके लिए, ताकि एक क्लियर कट अथॉरिटेटिव डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर हो एंड अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म हो। एंड लास्टली, लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए क्लाइमेट एक्शन से डील करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए, हर सिटी का अपना खुद का। एंड इन एडिशन, एक हर लोकल सिटीज़ के लेवल पे एक एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होना चाहिए in order to address all the environmental related issues. This is our conclusion and way forward in order to end the answer. And I think it is clear what are the issues related to urban planning जिसके कारण हमारे यहाँ urban flooding के issues इतने large scale पे आ रहे हैं and हमारी cities इतनी ज़्यादा trouble में आ रही हैं, social economic losses bear कर रही हैं, and how should we try to, what approach we should take in order to address them. So I hope it is clear to you. Please after starting of the video, look at the question, pause the video, write the answer, and then only watch the video in order to get the maximum benefit from this initiative. Thank you very much. Tomorrow we will come up with some new question related to some other GS topic.